So, children, today we are going to start the chapter What is Democracy? Why Democracy? This is the first chapter of civics of class 9th. मैं मुकेश कुमार टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया. So, children, today in this chapter we will try to understand about the meaning of democracy. From class 6 आपने देखा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है इन क्लास 6 ऑल्सो, इन क्लास 7 ऑल्सो, इन क्लास 8 ऑल्सो. नाउ इन क्लास 9th ऑल्सो we will try to understand about the meaning of democracy. So from where the word democracy derived? The word democracy is derived from the Greek word demos and kratos. Kratos is also known as krasia. So here is the two word, Greek word. Demos means people and kratos or krasia means power और rule. तो इसी ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसी का डिफिनेशन निकला है बच्चों. मतलब रूल ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी मीन्स हो गया रूल ऑफ पीपल. अब्राहम लिंकन ने भी कहा था डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं. बट इफ वी विल सी द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, then the simple meaning is the rule of people. So we have derived a simple definition of the democracy. हम लोगों ने एक simple definition of democracy का निकाला है. That is, democracy is a form of government in which rulers are elected by people. This definition, democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. Okay, children, so this is the meaning of democracy. Once again, the definition of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers, जो रूल करते हैं हम लोग पे, जो हम लोग का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, वो हम लोग के द्वारा चुने जाते हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपल मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाएं, ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट का क्या फॉर्म्स है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है कहीं और कहीं पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल elect their rulers and have right in decision making. Like India, in our country, the government is elected by the people through the vote of the people. So when the people elect the government, rulers are elected by the people and they have the right in decision making. This is known as the democratic government. Example is India. And second is non-democratic government. Non-democratic government. People do not elect their rulers and have no rights in decision making. जहाँ पीपल नहीं इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, और इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग में उनका कोई भी रोल नहीं होता है. इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं. लाइक द मिलिट्री रूल, उस समय हम लोग का डिफरेंट कंट्रीज में जो होता था मोनार्ची होता था, रूल ऑफ किंग, डिक्टेटरशिप. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड अगर हम लोग कंट्री देखें कि किस कंट्री में है एग्जाम्पल, तो सऊदी अरबिया बेस्ट वन एग्जाम्पल है. जिम्बाब्वे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ की नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है. सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो चिल्ड्रन, वी हैव understood about the meaning of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Now we will try to understand about features of democracy. डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट फीचर इज
major decision by the elected leaders. This is the first features. First feature is major decision by the elected leaders. That means in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. एक बच्चों इसमें एक स्टोरी है पाकिस्तान का, तो उसको जानने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, और उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में मेजर डिसीजन जो इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में नहीं था. सो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to the president. उन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कर दिया. वहाँ का जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया और खुद मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया अपने आप को, और बाद में जाकर उसने अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा दिया, प्रेसिडेंट के रूप में अपने आप को घोषित कर दिया. इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national or provincial assembly. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला. क्या था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कर सकता है. तो एक तरह से डिक्टेटरशिप के रूप में अपने आप को जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ स्थापित किया. नेक्स्ट, द लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल हैव नो पावर, दे कैन नॉट टेक एन डिसीजन, ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ एंड आर्मी ऑफिशियल्स. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल. इफ पीपल रूल शुड बी देयर, देन पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड पीपल. दैट मीन्स उसके बाद सारा पावर जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही रहा, या आर्मी जो था, आर्मी का जो हेड था उसके हाथ में रहा. दैट मीन्स पीपल के द्वारा जो इलेक्टेड लीडर्स थे उनके पास किसी भी तरह का कोई भी पावर नहीं था. सारा पावर जो था वो जनरल परवेज मुशर्रफ और वहाँ का जो आर्मी था या आर्मी का हेड जो थे उसी के पास था. तो दैट मीन्स पाकिस्तान में जो मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा था एक डिक्टेटर के द्वारा लिया जा रहा था, जिसने वहाँ के लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को हटा दिया था, तख्ता पलट कर दिया था. तो पहला पॉइंट यही है हम लोग का कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर होगा कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो होता है डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए. द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट फीचर चिल्ड्रेन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इलेक्शन क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए. हम लोग के पास बहुत सारा एग्जाम्पल है. अभी हम लोग मैक्सिको के बारे में देखेंगे. इससे पहले चीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि चीन में भी हर एक साल, हर एक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है. किसके लिए? वहाँ का पार्लियामेंट के मेंबर को चुनने के लिए. वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है उसके मेंबर को चुनने के लिए हर एक 5 साल के बाद वहाँ पे चुनाव होता है. उस पार्लियामेंट के लिए करीब करीब 3000 मेंबर्स
3000 मेंबर्स पूरे चीन से चुन के आते हैं, पूरे चीन से 3000 मेंबर्स। इसमें से कुछ मेंबर का चुनाव सेना भी कर देती है ना। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है बच्चों। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ का है उससे मंजूरी लेनी होती है, ठीक है। 2002 और 2003 में जो चुनाव हुआ था वहाँ, उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित छोटी मोटी जो पार्टी थी उसके सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। और जानते हैं हम लोग कि चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही राज रहता है। वहाँ जो भी सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है, किसी दूसरे पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट नहीं बनती। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग के पास है मैक्सिको का। मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू elect its president. The country has never been under a military or dictator rule, but until 2000, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. The PRI was known to use many dirty tricks to win the election. In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice, they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. There are not fair elections. It should be possible for people to use the choice to remove the existing rulers if they wish so. मैक्सिको का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो मैक्सिको में भी 6 साल के बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी मिलिट्री रूल या डिक्टेटरशिप नहीं आया है, लेकिन मैक्सिको में 2000 ईयर तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी है, उसी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। हर बार यही पार्टी जीत जाता था। किसी भी तरह का हथगंडा अपनाता था, किसी भी तरह का डर्टी ट्रिक्स करता था, लेकिन यही पार्टी जीतता था। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए इस पार्टी के बैठक में जाना अनिवार्य था। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स थे वे अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को PRI के लिए वोट देने को कहते थे। तो इस तरह से वहाँ पे कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं होता था और बार बार यही पार्टी PRI ही जो है वहाँ पे इलेक्शन जीत रहा था। डैट मीन्स द सेकेंड फीचर जो बोल रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो मैक्सिको में नहीं होता था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ही पार्टी बार बार डर्टी ट्रिक्स करके जीतते जा रहा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहा था। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग का है कि डेमोक्रेसी अगर सिस्टम है तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या चांस रहेगा कि वहाँ पे जो पावर में है वो हट भी सकते हैं। जैसे हमारे देश में 5 साल पे चुनाव होता है, तो एक बार अगर किसी का गवर्नमेंट बना, अगर पीपल उसको पसंद नहीं कर रहा है, अगला बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट हट जाएगी और दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। तो यही दिस इज द सेकेंड पॉइंट। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. So this is the second point, children. Next point is one person, one vote and one value. एक व्यक्ति, एक वोट और एक मोल, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसको देखते हैं बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। There are many instances of denial of equal right to vote. किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के बहुत सारे उदाहरण हम लोग को वर्ल्ड में मिल जाएंगे।
2 या 3 उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला है, इन सऊदी अरबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, इस्टोनिया has made its citizens rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। इस्टोनिया एक कंट्री है। इस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, रूसी लोग, रूसी समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है, ना के बराबर। मतलब रूसी अल्पसंख्यक समाज को वहाँ पे वोटिंग करने का राइट्स एकदम ना के बराबर है। उसी तरह से आ जाते हैं हम लोग, तीसरा एक फिजी है, हम लोग कंट्री से रिलेटेड है ये, है ना। ये जो बात मैं फिजी का बताऊंगा वो हमारे कंट्री से रिलेटेड है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यूबल दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ देखें तो वहाँ का मूलवासी, जो फिजी का मूलवासी है, उसके वोट का महत्व जो भारत से जाके वहाँ बसे हैं उनके वोट से ज़्यादा है। मतलब भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं उनका वोट का वैल्यू कम है, और वहाँ का जो ओरिजिनल वासिंदे हैं, जो वहाँ ओरिजिनल रूप से रहने वाले हैं, शुरू से मूलवासी जो हैं, उनका वोट का महत्व ज़्यादा है। उनका वोट का महत्व ज़्यादा है और भारतीय मूल के फिजी नागरिक का वोट का महत्व कम है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि जो एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है उसका भी समान वैल्यू होना चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट बी हैव 1 वैल्यू। लोकतंत्र में हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट के लिए एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। This is the third point today. Now next point is, and this is the last point also, rule of law and respect for rights। rule of law and respect for rights हिंदी में क्या हुआ? कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज होना चाहिए, जो रूल हो रहा है वो लॉ के अनुसार होना चाहिए, और जो राइट्स मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ है लोगों को, उसका आदर होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। जिम्बाब्वे shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. If we wish to access the democracy, it is important to look before and after the elections. There should be political opposition in the period before elections. This requires that a state should respect some basic rights of the citizens. They should be free to think, to have opinions, to express this public, to form associations, to protect and take their political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. This right must be protected by an independent judiciary. So this is the 4th point. कानून का राज होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए सबको। हमारे देश में देखो हम लोग को राइट्स मिला हुआ है, और कुछ राइट्स तो स्पेशल है हमारे लिए, फंडामेंटल है हमारे लिए। दिस इज नोन एज द फंडामेंटल राइट। तो जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था, जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं था। 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद देश पर केवल जानू पीएफ नाम का एक पार्टी है, उसका राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई भी की थी। उसका एक नेता है रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं रॉबर्ट मुगाबे जी। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ पार्टी ही जीतता है चुनाव। राष्ट्रपति मुगाबे लोकप्रिय भी हैं देश में, पर वे चुनाव गलत तरीके से अपनाते हैं। आज़ादी के बाद से 1980 में जो आज़ादी मिला जिम्बाब्वे को, उसके बाद से उन्होंने संविधान में बहुत बार बदलाव कर दिया और अपने अधिकार को, राष्ट्रपति के अधिकार को वृद्धि करते चले गए हैं। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको परेशान किया जाता है। उन्हें अगर उनका कोई सभा होती रहता है, मीटिंग्स होते रहता है, तो उनमें गड़बड़ कराई जाती है। सरकार के विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है जिम्बाब्वे में।
एक ऐसा भी कानून है जिम्बाब्वे में जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। सोचिए, अधिकार का हनन हो रहा है वहाँ पे। क्या आप राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर सकते हैं? जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसकी आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। जो वहाँ का मीडिया है, टेलीविज़न एंड रेडियो, सरकारी नियंत्रण में है। सिर्फ शासक दल जो है जानू पीएफ पार्टी, उसका विचार ही वहाँ से प्रसारित होते हैं। जो वहाँ का न्यूज़पेपर है स्वतंत्र है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार का आलोचना एकदम नहीं करना है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और कोई जज जो उसका खिलाफ डिसीजन देता था उस पर दबाव डाला जाता था, इवन उसको हटा भी दिया जाता था। तो ऐसा जिम्बाब्वे में होते रहा है बच्चों। तो जिम्बाब्वे के उदाहरण से हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स नहीं है, जो कि हमारा मेजर फीचर्स है डेमोक्रेसी का। 4 फीचर्स, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मतलब इसका समझने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ and citizens right. So this is the 4th feature children, this is the 4th feature. So अभी हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देख लिया और डेमोक्रेसी का 4 मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिया। एक बार फिर से समरी उसका देख लेते हैं कि क्या होता है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और कौन सा हम लोग का 4 फीचर्स है, 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनेशन, डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनेशन हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था, कहाँ से ये वर्ड आया था, किससे और कैसे इसका जो है सिंपल डिफिनेशन में निकला था। तो सिंपल डिफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये डिफिनेशन ही हम लोग को हमको फॉलो करना है, सिंपल डिफिनेशन इसको फॉलो करना है। उसके बाद अब हम लोगों ने इसका 4 फीचर्स देखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फीचर्स, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। दूसरा, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। और नेक्स्ट, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। And the last one is the exercise of this choice leads to the government limited by the basic rules of the constitutions and citizens' right. So these are the 4 major features of our democracy. Okay, children. So in this video we have read about the meaning of democracy, simple definition of democracy, and then the major features of democracy. In the next video we will read about the another part of this chapter. Thank you.